Good afternoon, class. Here again we are to study the physical education subject. I hope there was no problem in this economics period. One problem that I came through, the skin was blur somewhat. But tomorrow onwards I will try to clarify this problem too. In this period I am sure that this problem will not arise because I have made the slides and there is no photo and image taken and uploaded. There is problem with the image. So here we are going through planning in sports. See, PE is very easy subject. Okay, you have to just go through the theory and read it once. It is very easily understanding. Okay, you can understand it at once only. So starting planning in sports. Planning is important at every place today. So in PE we basically talks about sports, tournaments and games. Okay, जो कंडक्ट्स होते हैं, तो फॉर एवरी गेम एवरी इवेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एडवांस में एक प्लानिंग करें उस चीज़ के लिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट फिर कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो. कुछ फॉर सपोज एनी एसेसरीज नीडेड बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसा ना हो कि हम उनको अरेंजमेंट्स नहीं दे पाएँ. तो फॉर द वेरी रीज़न प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट एट एवरी लेवल. in business too you are going to read this planning. ओके, क्योंकि प्लानिंग का एक जो नेचर है दैट इज़ प्लानिंग इज़ ऑल परवेसिव. ये हर जगह रिक्वायर्ड होती है. जैसे वेरियस टाइप ऑफ फिक्सचर्स और टूर्नामेंट्स होते हैं, नॉकआउट, लीग, combination knockout with league or vice versa, challenge, leader, etc. So these are different types of tournaments and every tournament has different setup. हर किसी का अपना setup है, अपनी requirements है. जो एरेना है, जो बास्केटबॉल के लिए अगर ग्राउंड रिक्वायर्ड है, तो जो कंडक्टिंग कमेटी है उसको ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो सारे अरेंजमेंट्स जो आउटर टीम्स है या फिर जो बाहर की टीम्स आ रही है उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स करें. तो फॉर एनी स्कूल, इंस्टीट्यूशन और स्टेट एट एनी लेवल, वेन एवर देयर इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़, सो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. We are going to read the meaning of planning, objectives of planning, importance of planning, different committees, etc. You people may have some of the voice created, but I can't do anything with this because in every home the voices are created. I hope that there is no problem in your understanding and you can understand it easily. And one more thing, I have already told you that if you have any problem then you can comment it. Okay, you can make it, you can question it. So I'll get your question and in the next session I will try to answer that. Definitely I will answer. So planning in sports. One more thing, let us discuss about the physical education book. You can go through the Saraswati publication. Okay, and right now I have this evergreen books of Sanjay Kundra, so I am taking this only. I don't know that whether you people have this book or not, but these slides will be helpful to you to make notes. And one more thing, that I am speaking, you can note it down, and if I am speaking at a faster pace, then you can hear the video again. Okay. And I am so sorry for getting late. I uploaded the video at somewhat 10-12 minutes later, later the stated time, the time I gave you. So from tomorrow onwards I will take care of that too. Okay, so here we are, you can see the meaning. Okay, planning is an intellectual process of thinking in advance about setting of goals. Means
intellectual process of thinking in advance about setting of goals. Okay, that what goals we are going to achieve, हमारा लक्ष्य क्या है और हम इसे किस तरह से अचीव करेंगे. ओके, एंड सेकेंड वन इज़ एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़, और उन गोल को अचीव करने के लिए पॉलिसीज़ स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करना. डेवलपिंग स्ट्रेटजीज़ विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल एफिशिएंटली. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली प्लानिंग. एंड वन मोर थिंग, यू नो वेरी वेल प्लानिंग क्या होता है. हम एक पिकनिक, छोटी सी, चलो पिकनिक प्लान करते हैं, चलो एक मूवी प्लान करते हैं. ओके, प्लानिंग इज़ वेरी डेली रूटीन शब्द वर्ड. Okay, it is our daily routine word which we practice in our daily life. Okay, so it is just understandable that what is basically planning, but being more specific, planning is forethought. Okay, आगे के लिए what we are going to do in future. ओके, उसके लिए हम प्लान करते हैं. तो प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. दिस इज़ डन. अब एक जो डेफिनेशन दी है, आई एम गोइंग टू रीड अकॉर्डिंग टू अल्फर्ड एंड बेल्ट. इन्होंने कहा है कि प्लानिंग इज़ द थिंकिंग प्रोसेस. Obviously, planning is thinking process, the organized foresight and the vision based on the fact and experience that is required for intelligent action. Okay, so you have to note down and you have to learn one of the definition of any author. Okay, and the remaining you can write down by your own side, means whatever you understand. Next we are moving through objectives. Okay, objectives of planning, जो इसकी definition है वही basically इसके objectives हैं. To achieve the aim, aim को achieve करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं. कोई भी गोल है उसे किस तरह से अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, दिस इज़ ऑल वी आर planning. This is a thinking process. Okay, for suppose you have to score 99% in your 12th board examination, so you will plan from today onwards कि मुझे कितने आवर्स पढ़ाई करनी है, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँगा, कौन से टॉपिक्स लूँगा, कौन से टॉपिक्स कवर करूँगा जिस पे मेरा ग्रिप बना हुआ है बढ़िया वाला. तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक पूरा प्लान तैयार करते हैं. और जो आपके प्री बोर्ड्स होते हैं वो एक जस्ट आपका इवैल्यूएशन होता है कि व्हाट इज़ द प्लान. ओके, व्हाट मतलब प्लान का जो लेवल है वो क्या है, और प्री बोर्ड्स में आपको पता चल जाता है दैट हम कितने पानी में हैं. तो ये सब प्लानिंग ही होती है. एंड इफ़ इन प्री बोर्ड यू आर नॉट मच बेटर एज यू थॉट बिफोर कि हाँ मैं इतना तो कर लूँगा बट हुआ नहीं, तो अगेन यू विल प्लान दैट व्हाट आई कैन डू नाउ, व्हाट स्ट्रेटजीज आई शुड मेक, व्हाट पॉलिसीज आई शुड फॉर्मुलेट कि मैं इस जो मेन एग्जामिनेशन है उसमें मैं बेस्ट परफॉर्म दे पाऊँ. तो टू अचीव द एम ऑफ एनी प्रोग्राम, इवेंट और एनी ऑफ द एक्टिविटी, to consider the requirements of the program. It is given here in the book, but I am not mentioned in this slide. Sorry. I am so sorry. अब गर्मी है तो मुझे स्लाइस याद आ रहा है शायद. तो to consider the requirements of the program. Planning begin with the requirement of the program based upon the number of participants, types of activity, level of participants. कि क्या होने वाला है रिक्वायरमेंट. मान लो किसी भी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी, कि आपके नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स आपको कितने चाहिए, किस तरह की एक्टिविटी होगी, उसके हिसाब से आप अरेंजमेंट्स करें, और लेवल ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स क्या होगा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक. जब पहले से ही सब कुछ प्लान होगा तो इट बिकम्स मच ईजियर. ओके, कि आप हर एक चीज़ टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगी. अदरवाइज़ आपने अगर कुछ प्लान नहीं किया है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काउस और कन्फ्यूजन होगा कि देयर विल बी मिसअंडरस्टैंडिंग और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क्स. ओके, बहुत ज़्यादा या तो डबल काम होगा या फिर ठीक से काम नहीं होगा, टाइम पे काम नहीं होगा, तो और या फिर गलतियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नॉट द कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन द टाइम. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी कब आएंगी, व्हेन यू आर नॉट प्लानिंग प्रॉपरली. फिर है टू ब्रिंग अप द कोऑर्डिनेशन व्हेन यू हैव प्लान्ड ऑल द थिंग्स वेरी वेल.
then coordination will definitely be there. Things will be on time. Planning brings proper coordination among various committees and help to improve the program organization. To use the available resources, ओके, इफ़ेक्टिवली अगर आप अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहते हैं तो अगेन यू हैव टू प्लान कि किसे हम कितने बेस्ट और इफ़ेक्टिव मैनर में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है टू अरेंज द रिसोर्सेज. इट इज़ सेम, कोऑर्डिनेट करना, अरेंज करना, उनको यूज़ करना. ठीक है. मेक द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. टू मेक द स्केड्यूल ऑफ द प्रोग्राम कि क्या होना है, कब होना है, एक टाइम के अकॉर्डिंग. फॉर सपोज वी आर गेटिंग for I'm sorry, I know that I am not conducting on time, but still there is a plan. स्कूल की तरफ से एक प्लान है कि 11 बजे लेक्चर लगना है, 12 बजे ये लेक्चर लगना है. तो इट इज़ अ स्केड्यूल ऑफ प्रोग्राम कि कैसे क्या होगा. हाँ, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड ऑन टाइम. एंड नेक्स्ट इज़ टू फॉर्म वेरियस कमिटीज़. देखो सबसे बढ़िया जो है किसी भी प्लान को करने का कि आप वर्क को डिवाइड कर दीजिए. ये बिजनेस में भी आपको एक प्रिंसिपल आता है, डिवीजन ऑफ वर्क. ओके, जब स्मॉलर यूनिट्स में वर्क डिवाइड हो जाता है तो काम जल्दी होता है, एफिशिएंटली होता है और इफेक्टिवली होता है. तो इसलिए टू फॉर्म द वेरियस कमिटीज़, अलग अलग कमिटीज़ बना दी जाती हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आगे कि क्या उनका रोल होता है. फॉर सपोज आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स. चेयरपर्सन और चीफ पैट्रॉन, चीफ कमेटी जो होती है ना. सेकंड है डिसिप्लिन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी, फाइनेंस कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, प्रेस मीडिया कमेटी, टेक्निकल कमेटी. ये बहुत सारी कमिटीज़ आप पढ़ने वाले हैं. तो ये कमिटीज़ का फॉर्मुलेशन कब होगा? जब आप प्लानिंग करेंगे कि हाँ ठीक है, ये कमेटी ये देख लेगी, वो वाली कमेटी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देख लेगी. तो दिस इज़ बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. फिर नेक्स्ट आता है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो ये सारी चीज़ें एक ही हैं, बस व्हाट यू हैव टू डू एग्जैगरेट द थिंग्स. आपको ये सोचना है एग्जामिनर को कुछ नहीं आता. ओके, और दूसरी बात, एग्जामिनर को सब कुछ आता है. ऐसा मेरे टीचर्स कहा करते थे. एंड इट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन समवन. ओके, आपको ऐसा मानना है कि उसे कुछ नहीं आता तो आपको उसे सब कुछ समझाना पड़ेगा, और उसे सब कुछ आता है तो आप उसको गलत नहीं समझा सकते. ठीक है. तो अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग पढ़ते हैं. देखो मैं थोड़ी जल्दी कर रही हूँ. तो गोइंग थ्रू इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग गिव्स डायरेक्शन देती है कि हाउ टू वर्क टूवर्ड्स दी गोल की तरफ आपको किस तरह से वर्क करना है. तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन देती है. अनड्यू प्रेशर ये रिड्यूस करती है, क्योंकि जब पहले से ही प्लान है सब कुछ चीज़ें तो वो प्रेशर नहीं बनाएंगी. रिड्यूस अनड्यू प्रेशर. ओके, डेवलप क्रिएटिव आइडियाज़. ओके, यू विल ऑर्गेनाइज थिंग्स. आप सोचेंगे किसे कितने अच्छे तरीके से करूँगी, मेरा टाइम बच जाए, सब टाइम मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियली भी सब एकदम मैनेज्ड रहे चीज़ें. गुड कंट्रोल ओवर दी एक्टिविटीज़ इंक्रीजेस सक्सेस. ओके, क्योंकि जहाँ प्लानिंग होती है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन, देखो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सेम, कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन एंड सक्सेस एंड इम्प्रूव रिसोर्सेज. तो इन ऑल आई कैन से कि प्लानिंग जो है अगर वो आपने प्रॉपरली की है विद द डीप थिंकिंग ऑफ ऑल द इवेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपके सारे अरेंजमेंट्स रेडी है, तो यू विल डेफिनेटली सक्सेस. ओके, कोई स्कूल, मान लो हमारा स्कूल कोई एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, तो एंड इफ़ वी आर सक्सेसफुल, ऑल द थिंग्स हैव बीन completed on time, players have been deported, and the things they have needed, basketball court is completely up to the mark. Okay, so these things increases the success. And coordination, there should be coordination among the different departments. Okay, and planning will ensure the coordination, give the ensurety of coordination, and improve resources. Next is, so improve resources refers that when you are planning, so you have all resources in front of you and you can organize those. And if you are not planning, you are somewhat लेग बिहाइंड विद सम ऑफ द रिसोर्सेज. कुछ रिसोर्स हो सकता है आपके आइडल ही रह गए हो, आपने किसी को यूज़ नहीं किया हो, तो उसके लिए इम्प्रूव रिसोर्स अगर करना है तो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट.
So this is it for today. Tomorrow we are going to read various committees and their responsibilities. I didn't got much time, so I uploaded a little video. Okay, fine. Thank you. Have a nice day.